So, hello learners, welcome back to my channel. Today we are going to explore a very important and fascinating chapter from your science textbook, that is how do organisms reproduce. So this chapter is important because this chapter explains the continuity of life. So let me introduce myself. My name is Ankur Pratap Singh. So basically I am a offline teacher, but to came online I have a very good motive. uh, I'm sharing a short story with you all guys. So yesterday a girl came and she said that Bhaiya, I can't afford the fees of the online coaching, so I'm not able to just because of my financial issues. So I promised her that just don't worry, I will provide the same content, same material which I am providing here, same thing I will be providing online. So let's see how it goes on. So welcome back to my channel, and if you are new here, please subscribe and like the videos. So the chapter which we are going to start is a very important as it contains a very huge marks in board examination, that is 7 marks is contribute, and the chapter name is how do organisms reproduce. So let's start the chapter. So what we are going to learn in this chapter? So the topics which we are going to cover in this chapter is reproduction in plants and animals. So the first topic which we'll be going to cover in this chapter is reproduction in plants and animals. So reproduction in plants and animals, we will study about sexual reproduction as well as asexual reproduction. So the next topic which we will cover is reproductive health, and the third topic is need and method of family planning, HIV/AIDS. So family planning is very important. So we will be discussing in this video, in this chapter. So today what we are going to learn, if you want to take screenshot you can take. So let it सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new organisms are reproduced from their parents. So as you can see, the definition is on the board. So what is reproduction? So it is a biological process by which new organisms are produced from their parents. मतलब क्या? अगर पेरेंट्स से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. सो अब रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में आएगा वो है कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट? पहला इंपॉर्टेंस है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. किस लिए? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए. जैसे it ensure that the species do not go extinct. इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज अभी के टाइम पे हैं या फिर जो स्पीसीज पाई जा रही हैं वो कंटिन्यू करते, वो रहें, उनको पाया जाए हर एक समय में. अब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये स्पीसीज इस टाइम स्केल पे या इस समय में पाई जाती थी? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा. तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है. सो द सेकंड थिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, द सेकंड थिंग इज जेनेटिक वेरिएशन. अगर हम लोग जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो जब हम लोग स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है मिक्स. जैसे मेल से जो जेनेटिक मटेरियल आएगा, फीमेल से जो जेनेटिक मटेरियल आएगा, कंबाइन होके जेनेटिक मटेरियल में मिक्सिंग होती है और उसकी वजह से क्या आता है? वेरिएशन. अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सबसे सही जवाब आप लोग समझ पाएंगे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, और उसके पहले मैं समझा देता हूँ जेनेटिक वेरिएशन होता क्या है. ठीक है. तो जेनेटिक वेरिएशन स्पेशली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक मटेरियल इज मिक्स्ड लीडिंग टू वेरिएशन, इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन. एवोल्यूशन लीड टू एडेप्टेशन. ठीक है. अब क्या जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए. और एवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एवोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. एडेप्टेशन के लिए, एडेप्टेशन क्या होता है कि जो बदलता हुआ हमारा वातावरण है उसके हिसाब से अगर हमारी बॉडी ढल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं. एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है डायनासोर्स का. डायनासोर सबसे ज्यादा कब पाए जाते थे? जुरासिक पीरियड में. तो जुरासिक पीरियड में डायनासोर सबसे ज्यादा पाए जाते थे. तो हुआ क्या, वो अभी के टाइम पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो बदलते हुए वातावरण के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए. इट मींस दैट दे
have not adapted the environment which was changing continuously. So if variation is happening, then you will be able to adapt the changing environment. Okay, so take this screenshot. आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा वाला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व होगा और वो खुद को इन्वॉल्व करके नए ऑफस्प्रिंग को बना लेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, दैट इज मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगी, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मैं एक एक को पढ़ूंगा और एक एक को समझाता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जब पहला जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आता है वो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पैरेंट, मतलब सिर्फ सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा वहां पे। और क्या है, देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई गैमीट नहीं बनेगा। गैमीट का मतलब क्या, जो मेल होते हैं वो बनाते हैं स्पर्म सेल्स, जो कि मेल गैमीट होता है, और फीमेल क्या बनाती है, एग सेल्स बनाती है, जो कि फीमेल गैमीट होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब गैमीट फॉर्म नहीं होंगे तो फ्यूजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। और क्या है, द यंग वंस आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब जो यंग वंस बनेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन जब हो जाएगा तो अब जो नए यंग वंस बने वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगे। ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि जेरोक्स कॉपी बनती है, फोटो कॉपी बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लास्ट पॉइंट क्या है, फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जबकि इसमें कोई गैमीट नहीं बनना है, कोई फ्यूजन नहीं होना है, तो जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, जो कि होता है अमीबा में। अब होता क्या है, जैसे एक अमीबा ले लें, ये है हमारा अमीबा जिसका इर्रेगुलर शेप होता है। अब अमीबा के पास होती है न्यूक्लियस, ठीक। तो जब इसमें रिप्रोडक्शन होना होता है तो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म अपने आप को बदलता है और न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और ये डिवाइड हो जाते हैं दो सेल्स में, पहला अमीबा दूसरा अमीबा। इसी मेथड को बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो अमीबा बने हैं, ये जो डॉटर अमीबा बने हैं, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एज लाइक फोटोकॉपी वी कैन से। दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इट इन्वॉल्व्स बोथ पेरेंट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे और गैमीट फ्यूज करके जाइगोट भी बनाएंगे। ये सारी चीजें, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको आगे समझ में आएगा जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यंग वंस प्रोड्यूस्ड आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब जो यंग वंस बनेंगे वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट फोटो कॉपी नहीं होंगे, जैसे एसेक्सुअल में होता था। सेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग में जो रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, एग्जाम्पल में क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह ही हैं, क्या हम लोग एग्जैक्ट फोटो कॉपी हैं, नहीं। कुछ चीजें मिल सकती हैं पर हम लोग एग्जैक्ट फोटो कॉपी नहीं है, हम लोग के अंदर वेरिएशन है, कुछ चीजें बदली हुई हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है, पिछली चीज में मैंने डिस्कस किया था। और ये क्या है, स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। स्लो क्यों, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा, पहले गैमीट्स बनेंगी, उसमें टाइम लगेगा, फिर फ्यूजन होगा गैमीट का, फिर वो धीरे 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 डेवलप करता है, तो उसमें टाइम लग जाता है रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, एंड लेट्स सी यू टुमारो। बाय बाय।